morning, children. How are you? I hope you are fit and fine at your home. So today we are going to start another dynasty of chapter 4, that is Lodi dynasty and downfall of the Delhi Sultanate. We will read in this chapter. So without getting any time, let's get started. So children, on the last video of chapter 4, we already covered the 4 dynasties. The slave dynasty first, then we have Khalji dynasty second, then we have Tughlaq dynasty, then we have Sayyid dynasty, and now we have 4th Lodi dynasty. It was started from 1415 to 1526. These are only 3 rulers who are important from the Lodi dynasty. And this is the timeline of 1526. Here the downfall of the Delhi Sultanate was an end, and the next dynasty was started, that is Mughal, which we will read in the next chapter. First we have, these are 3 only important ruler during this era, 1451 to 1526. As we know that in history there are several rulers who come and go, and so those who are less important, those not covered by the history. So here are only 3: Behlol Lodi, Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi. Those are important ruler of the Lodi dynasty. Behlol Lodi was the founder of Lodi dynasty. It was started from 1451 to 1488. Then we have Sikandar Lodi, was the greatest ruler like Balban. He was the son of Behlol Lodi, 1488 to 15. He ruled 1488 to 1517. After the death of his father, he took the throne. And the next, Ibrahim Lodi. From the death of Sikandar Lodi, he ruled from 1517 to 1526. So we will read about this Lodi dynasty and the downfall of the Delhi Sultanate. So let's start it. This picture reveal the several things. Qutub Minar and the Ghiyasuddin Tughlaq's tomb is here, and that Tughlaqabad is also here, and near the Qutub Minar there is a Kotla, Firoz Shah Kotla is also there. Some buildings are still preservative by the government, but some are turned into the ruins. Behlol Lodi. He was the founder of Lodi dynasty. He brought peace and order in the country, and he died in 1488 and was succeeded by his son Sikandar Lodi. So this is the history only about the Behlol Lodi. Next we have his son Sikandar Lodi. He ruled from 1488 to 1517. Sikandar Lodi, his real name was Nizam Shah. He was the greatest ruler of Lodi dynasty. He was founded the city of Agra. आगरा याद रखना बेटा, अकबर की कैपिटल थी, लेकिन बसाया किसने था? सिकंदर लोदी ने. He founded the city of Agra and made it the headquarter of his army. Next week, he was a good administrator like the Balban. He was also good administrator also like a Balban. He was, as you know that in the last previous video we already know about the Balban. Balban accept the policy of blood and iron policy. Next we have Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last king of the Delhi Sultanate. He was the son of Sikandar Lodi. He was ill-tempered. So Ibrahim Lodi was not a very good ruler. So he was ill-tempered. अब ill-tempered राजा होगा तो आप सोचो प्रजा का क्या होगा. So lost the sympathy of his relative and the nobles. Revolt broke out everywhere. And Alam Shah, his uncle, went to Babur in Afghanistan and invited him to invaded the Delhi. So हमेशा कोई ना कोई, अगर कोई वीक राजा होगा तो हमेशा कोई बाहर का या अंदर का ही अपॉर्चुनिटी तलाशता है और फिर उसको थ्रोन को एक्वायर करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. उनके जो ट्रस्टवर्दी कोर्टियर थे आलम खान, उनके चाचा, वो कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में उस टाइम बाबर जो था, मुगल एम्पायर, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, बाबर उसके किंग था उस टाइम, रूलर, वो वहाँ मिलके चला गया. और क्या किया उसने? अपने भतीजे की, इब्राहिम लोदी की सारी कहानी बताई कि भी दिल्ली में अभी बड़े वीक है, आप उसके पास मत आओ, वो ये अटैक करो, रूलर वीक हो चुके हैं. सो बाबर द मुगल्स किंग ऑफ अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया. And there is a fierce battle between the forces of Babur and Ibrahim Lodi is known the Battle of Panipat. So अब इस लड़ाई में कौन जीता? Obviously जो strong होगा, तो उस टाइम strong कौन था? बाबर था. अब हाथी और तोप लेके आया था, तो obviously बाबर को ही जीतना था. और इब्राहिम लोदी की उसमें he defeated by उसमें इब्राहिम लोदी की उसमें हार हुई और बाबर नेक्स्ट रूलर बना और मुगल डायनेस्टी हमारे यहाँ पे आ गई, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे.
अब लोदी की डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब उसके क्या रीज़न थे कि इतनी बड़ी डायनेस्टी आई 12th सेंचुरी में? अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया ना, 12 जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो अपन ने पढ़ा था 1200 to 6, और 1526 में आफ्टर द डिफीटेड दैट इब्राहिम लोदी, और उनकी हारने के बाद 1526 में वो ख़त्म हो गई। अब बहुत सारे रीज़न रहे थे, वो पॉलिटिकल भी होते हैं और इकोनॉमिकली भी होते हैं, जोग्राफिकल भी होते हैं, एक और फाइनेंशियली भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं। इसमें क्या रीज़न थे? हम बहुत सारे रीज़न थे पॉलिटिकल, इसमें डायनेस्टी का डाउनफॉल होने का। These are the causes that how the that Delhi dynasty was lost their glorious history. There were many causes of the downfall of the Delhi Sultanate. They ruled it by sword and they never tried to win confidence to their subjects. हमेशा लड़ाई जीती जाती है, लड़ाई के साथ साथ तलवार से नहीं कर सकते। हमें जनता को अपना विश्वास दिखाना होता है, प्यार दिखाना होता है, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है, जो कि किसी भी दिल्ली सल्तनत ने ये नहीं किया। हमेशा उनको यही रहता था कि दे वर despotic by nature and only strong and determined king like Balban and Alauddin Khilji could maintain the order in the country. स्ट्रॉन्ग रूलर ही हुए, जैसे बलबन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, है ना, और सिकंदर लोदी हुआ, इन्होंने ही मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर को, और थोड़े स्ट्रॉन्ग रूलर रहे और मंगोल अटैक से उन्होंने बचाया दिल्ली को। अदरवाइज सारे कैसे रूलर थे? वीक रूलर थे, जो कि नहीं कर पाए उसको कवर, अपनी डायनेस्टी को नहीं बचा पाए। द हिंदू वर मेल ट्रीटेड एंड फोर्सिबली कन्वर्टेड इनटू द इस्लाम। The Hindus were maltreated and forcibly कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब ऑब्वियसली वो इस्लाम कल्चर के थे तो उनको इस्लाम फैलाना था, तो फोर्सफुली वो हिंदुओं को इस्लाम बनाने के लिए कोशिश करते थे। अगर कोई नहीं करते तो जजिया टैक्स जा तो उनको हिंदू को पे करना होता था। तो ये रिलीजियस जो पॉलिसी थी वो बहुत अनबिलीवेबल थी और लोगों ने उनके ऊपर फेथ करना बंद कर दिया था। सो देयर temples were destroyed and discredited and they were made to pay जजिया। एक टैक्स था जिसका स्टार्ट किया था उन्होंने, दिल्ली सल्तनत ने, जजिया जिसका नाम था, वो हिंदुओं को पे करना होता और जकात करना होता था मुस्लिम को। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर प्लेजर लविंग एंड वीक रूलर, और मोस्ट ऑफ द जितने भी रूलर आए हर एक डायनेस्टी में, उसमें एक दो ही स्ट्रॉन्ग थे। जैसे तुगलक में कुतुबुद्दीन, ये ऐबक डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा था और उसमें इल्तुतमिश अच्छा था, है ना। उसके बाद इसमें लोदी में सिकंदर लोदी अच्छा था और खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी अच्छा था, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं था। तो हमेशा कोई वीक रूलर होगा, उसके हमेशा कोई बाहर वाला हमेशा अपॉर्चुनिटी लेता है। द नोबल्स वर अपॉर्चुनिस्ट एंड रिवोल्टेड वेन एवर दे फाउंड द ओकेजन फॉर दैट। और उनके जो नोबल थे वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं थी। जब भी उनको मौका मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती, वीक रूलर कोई होता, वो क्या कर देते? रिवोल्ट कर देते अपने रूलर के अगेंस्ट और थ्रोन को हथियाने की कोशिश करते। दे लैक्ड लॉयल्टी टू द सुल्तान्स, और सुल्तान के लिए उनके लिए लॉयल्टी भी कम थी, फेथफुल नहीं थे, ट्रस्टवर्दी नहीं थे वो सुल्तान के लिए, हमेशा वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे। तो ये भी एक रीज़न था उनके डाउनफॉल का। और नेक्स्ट वन, आर्मी वॉज इल ऑर्गेनाइज्ड एंड इल डिसिप्लिन्ड। और आर्मी उनकी कैसी थी? इल ऑर्गेनाइज्ड और इल डिसिप्लिन थी। आर्मी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी रूलर को स्ट्रॉन्ग बनाने का या राजा को लड़ाई में जीतने का, क्योंकि उस टाइम मोनार्क सिस्टम था, हर कहीं हमेशा एक जीत पावरफुल उसको ही मिलती थी। द वॉस्ट एम्पायर वॉज अगेन ए कर्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो वॉस्ट एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था इंडिया का, तो एक वो भी एक बड़ा रीज़न था एम्पायर इसका डाउनफॉल का, दिल्ली डाउनफॉल का। नेक्स्ट वी हैव द जागीरदारी सिस्टम वॉज र्यूनियस। और जागीरदारी सिस्टम जो था वो हेरिडिटरी बना दिया था कि कोई काबिल हो या नहीं हो, सेनापति या कोर्टियर, उसको मिलनी है। तो जागीरदारी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया था बाद में। देर वॉज ए नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, मीन्स जब राजा की डेथ होती तो उसके बाद सन ही उसका थ्रोन पे बैठता था, चाहे वो कैपेबल हो या नहीं हो। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बनाया, क्योंकि उसको लगा कि बेटे इतने अच्छे नहीं है। लेकिन रजिया सुल्तान जो फीमेल थी 12th सेंचुरी में, तो एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। तो कोई एक सर्टेन फिक्स कोई लॉ एंड ऑर्डर या सक्सेशन रूल नहीं था, इसलिए हमेशा हर राजा के डेथ के बाद एक रिवोल्ट होता था, आपस में वॉर होती थी फैमिली में थ्रोन को लेने के लिए। द इन्वेंशंस ऑफ द मंगोल्स ऑल्सो वीकेंड द एम्पायर। उसके अलावा मंगोलों का आक्रमण भी एक रीज़न था। मंगोल्स जो क्रूअल ट्राइब थी, जो लूटपाट मचाती थी, वो दिल्ली में बार बार अटैक करती थी, वो भी एक बड़ा रीज़न था। अपनी प्रजा को देखें या ये बार बार अटैक देखें, ये हर रूलर के पास एक स्ट्रगल था।
है ना। सामने तैमूर एक जो था, उसने कितना बैटल अटैक किया था इंडिया में, जो बहुत लॉस हो गया था लोगों को, कारीगर और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को तैमूर लेके गया था। और तुगलक के टाइम तैमूर, और इसके इब्राहिम लोदी के टाइम बाबर, जो कि बार बार अटैक किया, और मंगोल्स तो थे ही, अटैक होते ही रहते। तो दीज आर द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत. Next we have today, children, come to the in the homework section. You have to do neat and clean work in your history copy. So first question is, give a brief account on the reign of Firoz Tughlaq. Firoz Tughlaq dynasty का था, अच्छा राजा था। तो उसने क्या किया, वेलफेयर Indian dynasty, Tughlaq Firoz Shah as an ideal ruler, he started many schemes for the welfare of his subject like rest house, charity department, ये सब बनाया उन्होंने. He built the fort named Firoz Shah Kotla. He founded the new cities like हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद. और उन्होंने नई ही सिटी भी बसाई थी, जो हिसार बहुत मॉडर्न हो गई है अभी, जौनपुर और फिरोजाबाद हरियाणा के आसपास है ये सब, है ना, हरियाणा और दिल्ली के आसपास अभी भी हैं ये सिटीज़. और फिरोज शाह कोटला भी है अभी, तो वो रून्स हो गया, कुछ हिस्सा डेवलप हो गया, कुछ हिस्सा अब खंडर में टर्न हो गया, दिल्ली, पुरानी दिल्ली के पास अभी भी आप देख सकते हो, नियर कुतुब मीनार के आसपास का एरिया. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डेक्कन कैंपेन, अलाउद्दीन खिलजी, व्हाट पॉलिसी डिड ही अडॉप्ट फॉर द डेक्कन किंगडम. अब डेक्कन के लिए, डेक्कन में क्या रीज़न था जो खिलजी ने अटैक किया डेक्कन में, और क्या पॉलिसी थी उसकी. पॉलिसी ये थी कि उसका रिलीजियस कोई एस्पेक्ट नहीं था, उसको इकोनॉमिक लेनी थी, वहाँ की वेल्थ लेनी थी. खिलजी वॉज अ मुस्लिम रूलर हु ट्राइड टू कॉन्कर द डेक्कन वेरी फर्स्ट. खिलजी एकमात्र मुस्लिम रूलर था जिसने डेक्कन को रूल करने की सोची. मलिक काफूर वॉज द एंट्रस्टेड विद हिज टास्क, और उसके हर टास्क में, हर अटैक में मलिक काफूर जो उसका गवर्नर था उसने हेल्प की. एंड ही कॉन्कर्ड देवागिरी, द्वारसा मुद्रा, मदुराई एंड वरंगल, ये सब एरिया थे जो साउथ के, उन्होंने वो एक्वायर किए. Then his Deccan policy. He took annual tributes and amassed great wealth. और उसने क्या किया, जीत कर राजाओं को वापस लौटा दिया, जो साउथ में जो भी रूलर थे, और उसने एक फिक्स एनुअल इनकम फिक्स की कि मेरे को इतनी देते रहना, हम अटैक नहीं करेंगे. सो दैट पॉलिसी ही अडॉप्ट in the Deccan. And his task is not to spread religion but to gain economic. So children, thank you so much watching this video, and I am hoping that this time maximum number of students will give me the homework, and they are busy for the preparation of the midterm also. So I hope in the next week I will get maximum students homework and classwork, so that they also can get the certificate of appreciation. And hoping you are doing well at home, children. Thank you so much for watching, and I just very positive that all the children now doing very well, and they are very sincere towards taking their study and their exam also. So thank you children.